देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपर फास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज करगल। डिप्टी कमिश्नर राष्ट्रीय सलाम ट्रैफिक डेप्रेट आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है शुमा। खान साहब परेड का मुआयना करेंगे। आज के परेड में इसके टीम फीमेल कंटिजेंट भी शामिल है। ये आज के परेड में शिरकत करेंगे। उसके साथ साथ अपने खूबसूरत टीमों के साथ हमारी नगर पुलिस की बैंड पार्टी भी इस परेड का जिस समय टूटे हम रवा वतन ए मेरे मुल्क। आज हमारे पूरे मुल्क में हम सब भारतवासी निहायत ही जोश व जज्बा और हुब्बुल वतनी के साथ 72वें योम जमहूरिया की तकरीबात मना रहे हैं। दोस्तों, मैं आज की इस निहायत ही मुबारक घड़ी में अपने दिल की अमीर गहराइयों से आप सबको योम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई और बहनों, ये वही दिन है जब बरसों अंग्रेजों के गुलामी के बाद हमारे मुल्क के अजीम रहनुमाओं और मुजाहिदीन आज़ादी की अनथक कोशिशों और बेमिसाली कुर्बानियों के नतीजे में आज़ादी की नियामत हासिल करने के बाद एक मुख्तसर मुद्दत में हमारे रहनुमाओं और माहिरीन कानून ने मुल्क के लिए अपना एक नया आईन तैयार किया, जिसके मुताबिक बिला मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल और ज़ात पात के इम्तियाज के बगैर हर एक हिंदुस्तानी को बराबर के हकूक मैसर होना शुरू हुए। दोस्तों, योम जमहूरिया हमें हर साल अपने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों पर ले जाने का हौसला देता है, जिसके लिए हुब्बुल वतनी, कुर्बानी और अनथक कोशिशों को अमलाने का जज्बा असहद जरूरी है। उनके ख्वाबों के सच होने की अलामत है और आज वो इंतहाई खराज अकीदत के हकदार हैं। हमारी इन बेमिसाल रहनुमाओं के तई सही मानों में खराज अकीदत तभी मुमकिन होगा जब हम अवाम दोस्ती और हुब्बुल वतनी के उसूलों पर चलने के लिए आमदा हो और हम सब मुल्क की तरक्की और खुशहाली के खातिर अपने अंदर इसार और मेहनत का जज्बा पैदा करें। साथ ही साथ हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मुल्क और समाज में जमहूरियत और मसावत के उसूलों को आम करें। दोस्तों, 26 जनवरी की अहमियत रोज़ रोशन के मानंद आया है। यह दिन कौम की आज़ादी, यकजहती और सलामती में एक एतक़ाद की अलामत है। इसके साथ एक शानदार तारीख जुड़ी है जिस पर हर एक हिंदुस्तानी को फ़ख्र है। हिंदुस्तान की तारीख में ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा।
دوستو، آج کے دن قومی ترنگے کے تلے ہم سبھی کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم ہر ایک فرد حب الوطنی اور انسان دوستی کے جذبے کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں، اپنے ڈسٹرکٹ اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آج کے اس مبارک دن پر میں ملک کے ان جانباز سپاہیوں اور حفاظتی دستوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو پرزور الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمارے ملک کی سلامتی کو مستحکم بنانے میں دن رات جڑے ہوئے ہیں۔ اس دن کے مناسبت سے میں یہاں موجودہ ہل کونسل کی اصول یابیوں اور ترقیاتی سرگرمیوں سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہماری کونسل پرعزم ہے کہ ہم ضلع کی تعمیر اور ترقی کے عمل کو تیز تر اور فعال ہو تاکہ عوام الناس کو ترقیاتی سرگرمیوں اور فلاحی اسکیموں سے استفادہ حاصل ہو۔ اس مقصد کے حصول کے خاطر ہم ہر ایک شعبے کو مزید مستحکم اور فعال بنانے میں جڑے ہوئے ہیں، جس کے خاطر خواہ نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف صحت، PWD، سیاحت، کھیل کود، زراعت، باغبانی اور منسلک شعبوں میں ترقیاتی عمل زور و شور سے جاری ہے، وہیں دوسری طرف دیگر شعبہ جات کو مستحکم بنائے جانے کے سلسلے میں کئی اہم نوعیت کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ضلع میں موجودہ مالی برس کے دوران سینٹرل روڈ فنڈ کے تحت 27 کروڑ 14 لاکھ روپے کی لاگت سے 3 بڑے پروجیکٹوں کو مکمل کیا گیا ہے، جن میں 9 کلومیٹر لمبی لبسن تتسا سڑک اور 2 کلومیٹر ڈاس دے تنگ سڑک کی کشادگی اپگریشن اور تھلس پرسا دریا سرو پر گارڈر پل کی تعمیر کا کام شامل ہے۔ ان پروجیکٹوں کے عملات رواں مالی سال کے دوران ہماری کونسل نے ضلع کے ترقیاتی علاقے دور دراز علاقہ جات میں بھی سینٹرل روڈ فنڈ کے تحت سینٹرل روڈ کی تعمیر کی ہے، جس پر لگ بھگ 13 کروڑ روپے کی رقومات صرف کیے جا چکے ہیں۔ موجودہ مالی برس میں سینٹرل روڈ فنڈز کے علاوہ اسٹیٹ سیکٹر پلان، ڈسٹرکٹ پلان کے تحت بھی کئی اہم کام ہاتھ میں لیے جا چکے ہیں، جبکہ کئی کام مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں اسٹیٹ سیکٹر کے تحت ضلع میں 30 کروڑ 70 لاکھ روپے کی لاگت پر 14 عمارتوں اور لگ بھگ 6 کروڑ کی لاگت سے 2 اہم پلوں کی تعمیر کو بھی منظوری ملی تھی، جن میں سے پدم زانسکار دریا پر زیر تعمیل پل کا لگ بھگ آدھا کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ دیگر پروجیکٹوں کی تعمیر کا کام تکمیل کے مختلف مراحل میں ہے۔ R&D سیکٹر میں رواں مالی برس کے دوران ڈسٹرکٹ پلان کے تحت ضلع کے مختلف علاقوں میں رابطہ سڑکوں کی تعمیر پر لگ بھگ 49 کروڑ روپے کے کاموں کو منظوری دی گئی ہے، جن میں سے کئی کام رواں سال کے دوران ہی مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ دیگر کاموں کے عمل آوری تکمیل کے مختلف مراحل میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلع کے باہر تعلیم، نوکری، تجارت اور دیگر مقاصد کے بنا پر مقیم باشندگان، مسافروں اور مریضوں کے لیے اقامتی سہولیات کے میسر فراہمی بھی ہماری اولین ترجیحات ہیں۔ اور اس سلسلے میں مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ڈوارکا نئی دلی میں کرگل بھون کی تعمیر کے سلسلے میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے، اور اس حوالے سے زمین کے حوالگی سے تمام لوازمات مکمل کے بعد اگلے 3-4 ماہ کے اندر اس کی تعمیر کا کام شروع ہونے کی امید ہے، اور اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے 18 سے 22 مہینے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سدرا جموں میں 10 کروڑ روپے کی لاگت پر سے زیر تعمیر گرلز ہاسٹل کی تعمیر کا کام تکمیل کے لگ بھگ آخری مراحل میں ہے۔ اس سال مارچ اپریل تک اس عمارت کی تکمیل مکمل ہونے کی امید ہے۔ گرلز ہاسٹل جموں کے تعمیر کے کاموں کے علاوہ کرگل بوائز ہاسٹل جموں میں مرمت و تجدید کاری کا کام بھی شدت سے جاری ہے، اور اس سلسلے میں اب تک 60% کام مکمل ہو چکی ہے، جبکہ باقی مانندہ کام 1 مہینے کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔ علاوہ کرگل ہاؤس سری نگر کی ایڈیشنل بلاک کی تعمیر کے لیے ٹینڈرنگ کی جا چکی ہے، اور اس بلاک کی تعمیر کا کام مستقبل میں عنقریب شروع ہوگا۔ PWD شعبے کے ساتھ ساتھ ہماری کونسل ضلع میں صحت و سیاحت کے شعبوں میں ترقیاتی سرگرمیوں میں صورت لانے کی وعدہ بند ہے۔
गुज़श्ता साल मार्च से लेकर अब तक कोविड-19 से पैदा सूरत हाल से निपटने और इस वबा से मुतासिर अफराद की इलाज व मालजे को मुमकिन बनाकर इन्हें बेहतर तबी सहूलियात फराहम करने के गरज से ज़िले में ज़रूरी सहूलियात से लैस कोविड-19 हस्पताल का क़याम अमल में लाया गया, जिससे बराह रास्त ऑक्सीजन सप्लाई और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के साथ साथ बीमारों की सहूलियत के लिए दीगर लाजमी सहूलियात फराहम किए गए हैं। इसके साथ साथ यूटी इंतज़ामिया की मदद से कोविड-19 के RT-PCR के लिए एक खुदकार लैब का क़याम भी अमल में लाया गया है, जिसमें अब तक कोविड-19 के 3143 टेस्ट लिए गए हैं, जिसके नतीजे में ज़िला भर में कोविड-19 के मामलात के मुतल्लिक़ बेहतर ढंग से तशख़ीस में मदद मिली है। इस सिलसिले में मैं हिल कौंसिल की तरफ से यूटी इंतज़ामिया का मशकूर हूँ, जिनके बर वक्त मदद व असरदार इक़दामात के बिना पर ज़िला में बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के दौरान कोविड-19 से निपटने के सिलसिले में ज़रूरी बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया गया। मैं यहाँ अगर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर बशीर हक चौधरी और उनके क़यादत में सिविल व पुलिस इंतज़ामिया की उन तमाम ऑफिसर व एहलकारान, डॉक्टर साहिबान, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर कोरोना जांबाजों का शुक्रिया अदा न करूँ तो नाइंसाफ़ी होगी, जिनकी कड़ी मेहनत, मशक्क़त और जान फिशानी के बिना पर ही हम मुल्क के दीगर मुकामात के मुकाबला ज़िला करगिल में कोविड-19 के वबा पर काफ़ी हद तक काबू पाने में कामयाब रहे। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ज़िले में अवामुन्नास बिलखुसूस बेरोज़गार जवानों की मायशी हालात में सुधार लाने के लिए शोबा सयाहत एक बहुत ही अहम रोल अदा कर सकता है। इस मकसद के उसूल के लिए हमारी कौंसिल मुख्तलिफ नौयात के इक़दामात उठा रही है। इस सिलसिले में ज़िला में सयाहों को बेहतर और तसल्ली बख्श रिहायशी सहूलियात फराहम करने और सयाहत के बुनियादी ढांचे को तक़वियत देने के एक मकसद के तहत द्रास, वखा, मुल्बेक, वादी सुरू और ज़ांस्कार में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटरों, सैरगाहों, वरासती मकामात और दीगर बुनियादी ढांचे की तामीर व तरक्की और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए जाने के गरज से लगभग 18 करोड़ रुपये की लागत से मुख्तलिफ तामीराती कामों को अमलाया जा रहा है। अलावा महकमा सयाहत करगिल के जरिए ज़िले में तारीख़ी मकामात की दर्जाबंदी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक प्लान ज़ेर अमल में है, ताकि इन मकामात को मज़ीद तरक्की दी जा सके। इसके साथ साथ ज़िला में सयाहों को राग़िब कराने और यहाँ के नौजवान नस्ल को इस शोबे के तहत रोज़गार के मौक़े और ज़रूरी एक्सपोजर फराहम करने के सिलसिले में कई इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की काशों के तहत महकमा टूरिज़म यूटी लद्दाख के जानिब से करगिल में पहली बार नौजवानों के लिए 3 रोज़ा फोटोग्राफी वर्कशॉप और 20 रोज़ा ऑनलाइन अदाकारी का कोर्स शुरू किया गया, जिससे बहुत से नौजवान मुस्तफ़ीद हुए। अलावा ज़िले में टूरिज़म को फ़रोग़ देने के गरज से यूटी इंतज़ामिया के जानिब से हाल ही में लद्दाख में लिटरेचर फेस्टिवल और रवायती मामानी फेस्टिवल के साथ साथ ज़ांस्कार विंटर स्पोर्ट्स और यूथ फेस्टिवल का भी एहतमाम किया गया। मुझे उम्मीद है कि इस किस्म की प्रोग्रामों के इनकाद से आने वाले वक़्त में ज़िले में शोबा सयाहत में नुमायाँ तरक्की आएगी और यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौक़े मिलेंगे। भाइयों और बहनों, शोबा तालीम जो कि हमारी कौंसिल के अवलीन तरजीहात में शामिल है, इस शोबे को फ़आल बनाने और ज़िला में निज़ाम तालीम को मस्तहकम करने के मकसद से हम कई पुख्ता इक़दामात उठा रहे हैं। इन इक़दामात में सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल के बतौर तरक्की दिया जाना, स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाना, दौर जदीद के तफाज़ुन के मद्देनज़र उस्तादों के लिए खुसूसी तरबियत प्रोग्रामों का एहतमाम और दीगर इक़दामात शामिल हैं। तालीम के शोबे में मज़ीद मुस्तहकम बनाए जाने के गरज से SDP के तहत साल रवां के दौरान 20 करोड़ 25 लाख रुपये वागुज़ार किए गए हैं।
जिसके तहत जिले के कुल 10 हायर सेकेंडरी स्कूलों और 21 हाई स्कूलों में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम नस्ब कराने, 86 मॉडल स्कूल और 179 प्राइमरी स्कूलों को हीटिंग का साजो सामान मुहैया कराने, तमाम सरकारी स्कूलों में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने और जिले में 4 रिहायशी हॉस्टलों और 6 स्टाफ क्वार्टर्स की तामीर का काम अमल में लाया जा रहा है। तालीम के अलावा खेल सरगर्मियों की अहमियत से भी हम इनकार नहीं किया जा सकता। इसी मकसद को हासिल करने के गरज से हमारी काउंसिल पुरज़म है और ज़िले में खेल कूद की सरगर्मियों को बढ़ावा दिए जाने के गरज से तमाम तर ज़रूरी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। यहाँ मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि हमारे ज़िले से वाबस्ता नौजवान लड़कियों व लड़कों ने ज़िला, रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ खेलों में नुमायाँ कारकर्दगी अंजाम देते हुए तगमे और दीगर इनामात हासिल करके हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ज़िला हिल काउंसिल इन खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के ज़िम्न में तमाम मुमकिन इक़दाम करेगी। ज़िले के मुख्तलिफ देहात में मुकीम आबादी के मायशी हालात में सुधार लाने के साथ साथ इन इलाकों में बेहतर ढांचे की क़याम और बेहतरी के अमल में भी हमारी कौंसिल हमेशा कोशां है। इस सिलसिले में रवा माली साल के दौरान MG नरेगा के तहत ज़िले के 18,000 से ज़्यादा जॉब कार्ड्स होल्डर्स को गैर हुनरमंद मुलाजिमत फराहम की गई है, जिनमें लगभग 12,000 ख़वातीन भी शामिल हैं। इस प्रोग्राम के तहत मौजूदा माली साल के दौरान जिला को मरकजी सरकार की जानिब से 54 करोड़ रुपए की लागत से 15 लाख अयाम कार की मंजूरी मिली थी, जिसमें से अब तक 11 लाख अयाम कार हासिल कर लिए गए हैं। इस ज़मीन में अब तक 15 करोड़ रुपए सर्फ किए गए हैं और इस स्कीम के तहत महकमे दिही तरक्यात ने दिही आबादी को रोजगार के मौके फराहम करने के साथ साथ इन देहात में मछली तालाबों, पोल्ट्री फार्मों, ज़ेर ज़मीन सब्जी स्टोरों, वर्मी कंपोजिट गढ़ों, आइस हॉकी रिंग्स और ग्रीन हाउसों का क़याम अमल में लाया है। अलावा PMAG के तहत रवा माली साल के दौरान इन गरीबों के सतह से नीचे जिंदगी बसर करने वाले अफराद के लिए पक्के रिहायशी मकानों के तामीर के सिलसिले में 1236 मुस्तहक़ अफराद में के हक़ में EFMS के ज़रिए इनके इनफरादी खातों में लगभग 15 करोड़ रुपये के रकूमात मुंतकिल किए गए हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख की तरफ से शुरू करदा प्रोग्राम लद्दाख रोड योजना के तहत रवा माली बरस के दौरान स्टेट सेक्टर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 70 से ज़ायद देही सड़कों की तामीर का काम अमलाया जा रहा है। ज़िले में बेरोजगार जवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करना भी हमारी कौंसिल की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इस सिलसिले में जारी इक़दाम के तहत साल 2020 के दौरान मुख्तलिफ महकमात में खाली पड़ी असामियों पर 388 उम्मीदवारों की भर्ती अमल में लाई जा चुकी है और आने वाले वक्त में मुख्तलिफ महकमों में खाली पड़ी असामियों पे बेरोजगार नौजवानों के भर्ती के ज़िम्न में हमारी कौंसिल संजीदा है। इस सिलसिले में हमने ऑनरेबल LG लद्दाख जनाब आर के माथुर साहब से भी भर्तियों का अमल जल्द कराने की पर भी गुजारिश की है और मुझे उम्मीद है कि यह सिलसिला बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। साल 2020 के दौरान भर्तियों के अमल को निहायत ही शफाफ, जायज़ और मुनसिफाना तरीके पर मुकम्मल करने में हमारे डिप्टी कमिश्नर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब बसीरुल हक चौधरी और उनके पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि काफ़ी मुद्दत से ज़ैली इल्तिवा जोजिला टनल की तामीर का काम बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है और NHIDCL की तरफ से इस तामीर को 5 साल के मुद्दत के दौरान मुकम्मल कराए जाने का निशाना मुकर्रर कर लिया गया है। इस सिलसिले में मरकजी सरकार बिलखुसूस वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ हाल ही में करगिल ज़ांस्कार सड़क की तोसी का काम NHDICL के हवाले कर दिया गया है, जिससे आने वाले वक्त में इस अहम सड़क की तामीर और तोसी का काम तेज तर होगा। हाल ही में लिए गए एक अहम और तारीखी फैसले के तहत कुर्बथंग प्लेटे को फौज की तरफ से खाली कराए जाने के हवाले से लवाजिमात हतमी शक्ल दी जा चुकी है और इस हवाले से फौज और हिल काउंसिल के माबेन एक
बाज़ाब्ता MOU पर दस्तखत भी कर लिए गए हैं। इस कदम से आने वाले वक्त में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करगिल टाउन की तामीर व तोसी में बड़े पैमाने पर मदद हासिल होगी। जिला में बेहतर हवाई सर्विस फराहम करने के हवाले से भी हमारी कोशिशें जारी व सारी हैं और इस हवाले से हमारी काउंसिल करगिल एयरपोर्ट की तोसी और जिला के लिए कमर्शियल हवाई सर्विस शुरू किए जाने के मामलात मरकजी सरकार के साथ शद्दोमत से उठा रही है। मैं आज के इस पुररौनक तकरीब के मौके पर जिला के उन कामयाब उम्मीदवारों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिन्होंने कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और नीट के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की है। साथ ही साथ मैं इंस्पायर अवार्ड हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि इन उम्मीदवारों की कामयाबी से जिला में दीगर नौजवानों को भी जिंदगी में आगे बढ़ने का जिद्दोजहद मिलेगा। मैं आज इस मौके पर जिन शख्सियात व इदारों को स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है, जिनमें काचो अहमद खान, मोहम्मद बाकर सब इंस्पेक्टर और बाकरिया हेल्थ केयर शामिल है, मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ज़ांस्कार से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब सुल्तान छंजोर को पद्मश्री अवार्ड हासिल होने पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मीडिया से वाबस्ता लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने काफ़ी मुश्किलात के बावजूद कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान लोगों को बर वक्त मामूलात पेश करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। साथ ही साथ हमारी कौंसिल वादाबंद है कि हम जिले करगिल को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के अपने काम को और भी तेज तर करें। इस ज़िम्न में मैं अपने साथी एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहिबान, पंचायत मेंबर्स और सबों का ममनून और मशकूर हूँ जो अपनी कोशिशों और ताउन से मेरी हौसला अफजाई जारी रखे हुए। ये उनकी हमदर्दाना और मुखलिसाना ताउन और दिली हमदर्दी का नतीजा है कि आज हम जिले में तरक्याती सरगर्मियों को मजीद तेज तर करने में कामयाब हो रहे हैं। मैं करगिल के अवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में लोगों के खदशात, मांगों और ज़रूरतों के हवाले से हिल काउंसिल तमाम तर ज़रूरी इक़दाम उठाएगी। यहाँ में अगर अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहबान, बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बशीर उल हक चौधरी साहब, SSP जनाब इनायत अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उनका हमारी गुजारिशात पर हमेशा बदस्ते लब्बैक हाजिर रहने से अवाम की खदमत मुमकिन हो रही है, जिसका नतीजा तरक्याती कामों की तेज तर अमलावरी से पता चलता है। आखिर में मैं करगिल के अवाम उन्नास, बिलखुसूस तमाम मजहबी, सियासी व समाजी रहनुमाओं, इदारों और उस्ताद असद से इस्तदा करता हूँ कि ज़िला करगिल को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाने में हमें अपना ताउन पेश करें, क्योंकि जब तक हिल काउंसिल को आप लोगों का ताउन हासिल न हो तब तक मुश्किलात बर वक्त इजाला मुमकिन न होगा। मेरी दिली दुआ है कि खुदा हम सबको कामयाबी व कामरानी अता करें और हमें अपने कौम और मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अदा करें। आमीन। जय हिंद। तिरंगे की हुजूर सलामी पेश करते हुए पुलिस कंटिंजेंट फर्स्ट के प्लाटून कमांडर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बाकर और दूसरी प्लाटून जो कि खवातीन पर मबनी है, प्लाटून कमांडर का जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं कांस्टेबल हसीना बानो, और इस तरह से दूसरी इसके बाद तीसरी प्लाटून जो कि खवातीन पर मबनी है, कांस्टेबल जरीना बाबू जिम्मेदारी लिए हुए तिरंगे की सलामी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कांधे से कांधा मिलाकर बाजू हवा में लहराते हुए अपनी मादरी वतन के तई इजहार मोहब्बत, इजहार यकजहती, इजहार इश्क व अलाका जाहिर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तिरंगे की हुजूर सलामी पेश कर रहे हैं, जवानों की बहुत ही बेहतरीन अंदाज मिलाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोविड-19 पैंडेमिक हुई
म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस पेश किया जा रहा था दार्जिलिंग से आए हुए फनकारों की जानिब से। इसके बाद में आज की जिन्होंने कोविड-19 जो पेंडेमिक है इसके मैनेजमेंट में और लॉ एंड ऑर्डर प्रोसेस को जो है मेंटेन करने में, कंट्रोल करने में नुमाया कारकर्दगी अंजाम दी है। मैं मुल्तमस हूँ उसके बाद मिस्टर इफ्तिखार अहमद केएस, डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट करगिल, जिन्होंने DSSRB के रिजल्ट्स को फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में डिक्लेयर करने में नुमाया कारकर्दगी अंजाम दी है। श्री इफ्तिखार अहमद केएस, डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट करगिल। इसके साथ साथ जो है DSSRB के रिजल्ट्स को कंडक्ट करने में हमारे LHDC करगिल के चीफ कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस जनाब शौकत राठौर साहब का भी एक अहम कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं शौकत राठौर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप भी अपना एजाज हासिल करें। श्री शौकत राठौर, CCF LHDC करगिल। वक्त की कमी की वजह से सबको अलग उन्होंने पूरी की फोक म्यूजिक एंड डांस यहाँ पे पेश किया।
Then we have Dardi folk music और नृत्य पेश कर रहे थे. Then we have a memento to the Shiva Dardi group from Dras, Mr. Mohammed Reddy of Himalayan Sports and Cultural Organization, Dras. We have a memento to the flag hoister. चाहूँगा एसआई जाफर अली साहब, सब इंस्पेक्टर जाफर अली साहब, जो हमारे जिन्होंने आज के इस फंक्शन के लिए फ्लैग, नेशनल फ्लैग तैयार. मिस्टर मोहम्मद हुसैन से गुजारिश करूंगा कि आप अपना मेमेंटो हासिल करें. मिस्टर मोहम्मद हुसैन, कमेंटेटर. Next, Mr. Muhammad Ali. Yeah.